Hello, dear students. Up to now, we have seen the chapter number 8, part 1, in which we have come across that our writer, our author, would like to do certain different when he went at Basra. He thought to keep a pet. As we all just have an idea that we would like to keep dogs, cats, turtles as a pet. But our author would like to do certain different. So, by the help of his friend, he got an otter, a different creature as a pet. In this, when he bought that, the two Arabs came with an otter to his house. The author kept the otter with him, and first 2 3 days he tried to teach certain things. He gave the Mijbil name of that otter. Author initially left the Mijbil to sleep on the floor. But certainly, on next day, that Mijbil, that otter, came to the bed of author and lay with his knee, in between his knee. The next day, the author take Mijbil to the bathroom and pour the lot of water in the bathtub. By seeing that, the Mijbil was delighted and very happy. Started playing very well because the Mijbil would love to have a lot of water and to play in it. Next, author gave the marbles and the ball to play, and Mijbil would like to play as if he played a soccer. Matlab very well. Until and unless the author used to be in the Basra, there wasn't any problem to keep a Mijbil as a pet over there. But he had a worry that he would like to take that Mijbil with him to England. So, उसको पहले पेरिस लेके गया, फिर पेरिस से लंदन, और वहां से वो अपने देश लेके जाना चाहता था. जब वो फ्लाइट में था तब उसने अचानक से देखा कि मिजबिल वहां पे नहीं था, निकल गया था. ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में देखी. पार्ट 2 में क्या है, चलो देख लेते हैं. मीज आउट ऑफ बॉक्स. अब जैसे ही प्लेन के अंदर वो मिजबिल को लेके गया, थोड़ी ही देर के बाद मिजबिल जो है वो प्लेन में ही बॉक्स से बाहर निकल गया. Soon Midge was out of the box. He disappeared very soon. वहां से तुरंत ही कहीं ना कहीं गायब हो गया. There was crisis and shrieks inside the aeroplane. लोग चिल्लाने लगे, right? वहां पे अचानक से ऐसे प्राणी को देखकर सभी लोग चिल्लाते हैं. A woman stood and called, "A rat, a rat!" The author saw Midge's tail beneath the legs of an Indian. एक इंडियन जो था वहां उस फ्लाइट में, उसके 2 लेग्स के बीच में
सॉरी, दो लेग्स के बीच में ऑथर ने मिचबिल की टेल देखी, जो कि चिल्ला रही थी। क्या चिल्ला रही थी? एक जो लेडी इंडियन थी वो, अ रैट, एक चूहा। द ऑथर्स फेस गॉट कवर्ड विथ करी। उतने में ऑथर का जो फेस है वो कवर्ड विथ करी, मतलब जो एयर होस्टेस कुछ लेके जाती होगी वहां पे उसने देख के चिल्लाया, तो वो जो करी वाला बाउल था वो पूरा का पूरा ऑथर पे आ गया। द एयर होस्टेस assured the author that she would find the animal। और एयर होस्टेस ने ऑथर को कहा कि भाई वो कैसे भी करके आप उस एनिमल को फाइंड कर लो। The author returned to his seat। ऑथर को वापिस उसकी सीट पे भेज दिया गया। Very soon Mitch came to him on his own। थोड़ी ही देर में मिचबिल वापिस अपने ऑथर के पास, अपने मालिक के पास आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, दूसरा हिस्सा क्या हमें बताता है? दूसरा हिस्सा बताता है कि प्लेइंग बाय मिच विथ अ पिंग पोंग बॉल। अब नया हिस्सा, जो नया पार्ट चलता है वो यहाँ पे बताया गया है। मिच एंड द ऑथर रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। मिचबिल और ऑथर दोनों लंदन में करीबन एक महीने तक रहते हैं। एंड दे बोथ यूज्ड टू प्ले अ पिंग पोंग बॉल। He would play with toys, ping pong balls, marbles, rubber fruits, etc. जो मिचबिल है ये सभी चीजों से खेलना सीख गया था। He played with a suitcase with the ping pong ball. He would catch ball of suitcase cover. He would hide from it and walk off it. This would become his favorite गेम। और ये छुपाना, फिर बॉल को लेके आना, फिर वापस देना, फिर बॉल को डालना, फिर कहीं छुप जाना, ये जो गेम थी वो मिचबिल के लिए बहुत पसंदीदा गेम बन चुकी थी। मिच प्लेइंग इन द आउटिंग्स। जो मिचबिल है वो बाहरी एरियाज के अंदर भी बहुत खेलता था। द ऑथर एक्सरसाइज मिच ऑन अ लीड आउटसाइड। Mitch developed certain habits on those walk in the London street। धीरे धीरे मिचबिल ने लंदन स्ट्रीट में चलने की भी हैबिट्स डाल दी। He went with him like a children playing। वो ऑथर के साथ हमेशा एक छोटा बच्चा जैसे खेलता है ना, उस तरह से खेलते खेलते चलता है। रनिंग, भागता है, टचिंग थिंग, चीजों को छूता है। इन द स्ट्रीट ही वुड टेक द ऑथर नियर द प्राइमरी स्कूल आउटर वॉल। वो मतलब मिचबिल लेखक को प्राइमरी स्कूल की बाहरी दीवार तक लेके जाता है। ये हर रोज का काम होता है। He would then gallop on it। This interested the pupil and the staff of the distraction। और वो वहां पे धीरे से दीवार पे चढ़ के वो सारी चीजों को घुमाता रहता है ना, तो वो बच्चे जो है वो स्कूल से बाहर उस और स्टाफ को भी डिस्ट्रैक्ट करता है, बच्चों को भी डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। आगे क्या होता है? क्वेरीज अबाउट मिच, यानी मिचबिल के बारे में अगर कोई क्वेरी का मतलब क्या, कोई दिक्कतें हुई थी, देखते। मिच प्रेजेंस मेड द लंडनर्स गेस अबाउट हिज काइंड। मिचबिल का जो वहां पे होना वो लंडनर्स को कुछ नयापन दिख रहा था। वो कौन से प्रकार का एनिमल है वो सोचने पे मजबूर कर रहा था। Otters belong to small group of animal called mustelion। मस्टलाइन नाम का जो एक एनिमल का छोटा सा ग्रुप है, उस ग्रुप में से ये यहाँ पे मिचबिल एक एज अ पेट आया हुआ था। These are shared by the badger, mongoose, vassals, stoat, mink and others। ये सारे जो मैं आपको नाम यहाँ पे बताए गए हैं डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे एनिमल की एक प्रजाति है। जैसे आप जो नेवला वगैरह होते हैं ना, वो उसी तरह का, व्हीसल जिसको आप बोलते हो, राइट, उसी तरह का ये एक एनिमल है। द ऑथर रिसीव्ड सेवरल क्वेश्चंस। ऑथर को लोगों के द्वारा बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। इट कुड बी अ बेबी सील, अ वॉलरस, अ हिप्पो, अ बिहेवर, अ बियर कब, अ लेपर्ड, बट मिच was nothing but an otter।
ऑथर को पूछा जाता था सभी लोगों के द्वारा कि क्या ये बेबी सील है, क्या ये वॉलरस है, क्या ये हिप्पो है, बीवर है, या फिर बियर है, या लेपर्ड। लेकिन ये तो एक अलग ही किस्म की प्रजाति का एनिमल है, वो एक ऑटर है, ऑटर के अलावा और कुछ नहीं, मतलब जिसको हम जल बिल्ली बोलते हैं। क्वेश्चन बाय द लेबरर्स, जो वहां पे मौजूद है उनके द्वारा भी उनको कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। द ऑथर अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द लेबरर. He was digging a hole in the street. He saw the author with the otter. He laid down his tool. He came near him and yelled, क्या बोलता है? He then growled out, "Here, Mister, what is that supposed to be?" और जो काम करने वाले मजदूर है, वो मजदूर ज्यादातर राइटर को क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई यार ये मिस्टर आप बताओ तो सही कि ये कौन सा पैट है, आप ये कौन सा एनिमल है, कौन सा एनिमल को आप लेके घूम रहे हो. My dear student, I hope this unit will help you to understand it better. Please do not forget to write it. Stay home, stay safe, and keep learning, keep reading in these days. Thank you very much.